Okay, good morning, everyone. We have already completed up to introduction to GST, meaning of GST, definition of GST, then features of GST. So in short, GST is a tax which was introduced from 1st July 2017 and it is applicable on goods and services or both except taxes on alcoholic liquor for human consumption. So this is very important. You should note that alcoholic liquor are not at all taxable under GST. Okay, it is tax on consumption, means it is borne by consumer. It is destination based, means export will always be zero rated and tax will be applicable on imports. Okay, value added tax है output tax minus input tax. So whenever there is an addition to the input, that additional part will be taxable under GST. So the whole amount is not taxable because you have already paid tax on input. So continuous flow of credit, since a GST is applicable to whole India equally, so there is the smooth flow of credit. Means if it is any state or if it is at central level or within the state, you can claim credit at any ways because it is not like your VAT, because VAT was state discretion and GST is applicable to whole of India equally. Okay, tax on supply means it is not on manufacture, not on sale. We have introduced new word, that is supply, and obviously supply, the word supply you will be learning more in concept of supply. So we will now move further. Like I explained, tax on consumption. See, Maharashtra will get the revenue because Maharashtra is importing. It is destination based tax. Okay, so the goods which is being exported from Gujarat to Maharashtra, Maharashtra will be getting the revenue of it. Okay, one revenue will be taken by the central government and the other part, that is IGST. Half of IGST is the revenue of center and then half is of state. So which state is going to get the revenue on the basis of destination based principle? It will be given to Maharashtra only. Okay, Maharashtra, there will be taxability and obviously the revenue will be of that state only. So export is not at all taxable, import will be taxable. So when we are talking about export and import, so I am not taking it into general, means it is not out of India and coming in India. We are talking about states. Okay, this is regarding ITC. Obviously, the practical question we will be solving, so you don't have to worry about this format. Leave it. Okay, example of input tax credit it is. So I have already given the example yesterday. There is Mr. A sold goods to Mr. B at rupees 10,000. Then Mr. A sold goods to Mr. B at rupees 20,000. There is amount of GST you need to calculate. So 1800 is on sale, 2400 is on sale, and when you purchase these goods, goods from C होना चाहिए. A purchased goods from C at rupees 5,000. So 18% IGST कितना हो जाता है उसके ऊपर 900. So if you calculate tax on sale minus tax on purchase, so 1800 plus 2400 is on sale. तो आप दोनों को प्लस करेंगे and जो आपका परचेस का जो आईटीसी जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन परचेस, वो आप क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे. ओके, सो दिस इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. वैल्यू एडिशन में मैंने आपको बताया था, सेम फीचर्स ही हम लोग इधर पे कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, सप्लाई की डेफिनेशन एक बार देख लेना चाहिए, मैंने आपको बोला था, और भी आगे आप कई बार सप्लाई के लिए अलग अलग चीज आप रीड करेंगे. द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सेज ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई का सिंपल मीनिंग आपके गुड्स के लिए सेल है, ठीक है, और सर्विसेज के लिए जो रेंडर करते हैं आप सर्विसेज, दैट इज सप्लाई ओनली. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल. तो एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर. सेल इज आल्सो सप्लाई, ट्रांसफर इज आल्सो सप्लाई, barter is also supply, exchange is a supply, license means you are allowing someone to use, so that is license. Rental, you already know, you take it on rent and you give it back, so it's a part of service. Lease is a long term rental
agreement. Or disposal means sale made or agreed to be made for consideration by person in the course or in the course of in the course or furtherance of business. ठीक है, so in the course और furtherance of business आना चाहिए. ठीक है, so आप बिजनेस में जब इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको लर्न करने जैसी है. Apart from the general thing that is given, that is sale, transfer, barter, exchange, license, rent and lease, apart from this also there are so many things that you need to learn here. That is what is consideration. Consideration सुना है आपने इससे पहले? Consideration किसको बोलते हैं? लॉ में सुना होगा. Okay, something in return. So when you are selling, what you are getting in return? बोलो, सेल करने पे आपको क्या कंसिडरेशन मिलेगा? कुछ नहीं मालूम. आप जब गुड सेल करते हैं तो आपको क्या मिलता है बदले में? मनी. हाँ, सो दैट इज कंसिडरेशन फॉर योर सेल. करेक्ट. सो कंसिडरेशन होना चाहिए वहां पे. अगर आपने फ्री में किसी को गुड्स दिया है, सो दैट इज नॉट अ सप्लाई. सप्लाई नहीं है मींस जीएसटी विल नॉट बी अट्रैक्टेड देयर. ओके, आपकी मम्मी ने आपको स्वेटर बना के दिया है, सो इट इज नॉट अ बिजनेस. करेक्ट. सो जीएसटी वोंट बी चार्ज देयर. करेक्ट है. सो अगर वो बना के बेचें तो जीएसटी वहां पे अप्लाई हो सकता है, बिकॉज बिकॉज देन इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. सप्लाई के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. या तो देयर शुड बी सप्लाई, दैट इज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज. If you talk about sale, it is related to goods. If you talk about transfer, it is related to goods. If you talk about barter, it is related to goods. If you talk about exchange, it is related to goods. But license, rental, lease, these are related to services. Services means you are temporary allowing someone to use it. ठीक है, you are allowing means you are licensing, you are giving on rent or you are giving on lease. ठीक है, लीज इज अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, जो फैक्ट्री वगैरह के केसेस में आपने देखा होगा. सो आप जो है वो रेंट पे लेते हैं. रेंट मीन्स आप थोड़े देर के लिए लाइसेंसिंग लेते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, दे देते हैं उसको रिटर्न, उसका कंसिडरेशन देके. दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस भी है आपके सिलेबस में, सो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. इवन इंपोर्ट विदाउट कंसिडरेशन, देन एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ये सब मैं आपको सप्लाई के टाइम पे एक पूरा कंप्लीटली न्यू आपका चैप्टर है. यहाँ पर आपको सिर्फ आपको पढ़ना है कि व्हाट इज सप्लाई. सो लेट मी नो, आपको सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया है? सप्लाई मीन्स या तो आपने सेल किया है, या तो गुड सेल किया है, या तो सर्विसेज सर्विसेज लाइसेंसिंग किया, रेंटल किया है, लीज किया है. ठीक है, सर्विसेज रेंडर किया है इन शॉर्ट, या गुड्स को सेल किया है. ये दोनों का मीनिंग सप्लाई में आ जाता है. और मैंने आपको बोला था जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है. मतलब जहाँ पे गुड्स होगा वहाँ पे गुड्स के ऊपर, जहाँ पे सर्विस होगा वहाँ पे सर्विस के ऊपर, जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर जीएसटी जो होगा वो अप्लाई होगा. ठीक है. और ज्यादा जरूरी क्या है सप्लाई में? देयर शुड बी कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन फॉर द बिजनेस और in the course or furtherance of business. That is very important. So when you talk about furtherance of business means it should be related to business only. Okay, then we will move on. ये इस definition का continuation है. मीनिंग ऑफ सप्लाई जो है, सप्लाई में सेल आता है, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस. ठीक है, एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे डेफिनेशन करेक्ट लिखा है इस पेज के ऊपर, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं सप्लाई के लिए. दैट्स इट. सप्लाई के लिए आप इतना मान के चलो, बिकॉज इट इज देयर इन द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, बिकॉज जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption. So GST is applicable on sale. GST is applicable on supply, not on sale. Okay. Although if you look at the definition of supply, you will come to know that supply includes sales. Okay. So supply में sale आ जाता है indirectly. But when you talk technically about GST, GST is applicable on supply. सो सिर्फ सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये बोलने का मतलब. ठीक है. ओके, दीज आर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई. वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सबके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. सप्लाई मींस टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आएंगे. इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकली
क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको करना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है इसके ऊपर, बट क्वेश्चंस ही आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैंने जितनी भी चीजें स्लाइड में डाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है आपको, ठीक है। स्कोप ऑफ जीएसटी मीन्स कहाँ पे जीएसटी कहाँ तक के अप्लाई होगा, ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग यही होता है। Okay, so if you talk about GST, GST is levied on goods and services or both, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो GST is applicable on goods and services, तो ये इसका फर्स्ट स्कोप है कि पहली बात तो अप्लाई कहाँ पर होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है। और ये पॉइंट में कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं है, करेक्ट। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रीम ऑफ जीएसटी, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं कि अल्कोहलिक लिकर जो है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मैंने जितने भी इस बार पेपर्स देखे हैं जीएसटी के, उस ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा था, बिकॉज इट इज दी पार्ट ऑफ डेफिनेशन, तो लोग कई जगह पे पूछते हैं, कंफ्यूज बहुत करते हैं, बट इफ यू नो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 petroleum products, that is crude, diesel, petrol, aviation turbine fuel, and natural gases are not presently leviable to GST, will be levied as per the recommendation of GST Council. तो GST Council डिसाइड करेगी, अभी आगे पढ़ेंगे GST Council क्या होता है, ठीक है। तब तक के आप ये समझ के चलो कि गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। जीएसटी जो है इट्स अ ग्रुप जो कि गवर्न करता है, इट्स अ काउंसिल जो कि क्या करता है, इसको गवर्न करता है। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू एग्जिबिशन, जो भी होगा आगे आप पढ़ेंगे, तो जीएसटी काउंसिल जो है वो गवर्निंग बॉडी है। नाउ मुझे सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना है, व्हाट कैन बी द रीजन जिसकी वजह से ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो जीएसटी में अब तक के नहीं है। सी, you are not going to confuse between these two things. Alcoholic liquor and petroleum products, these two things are very different. Alcoholic liquor is out of the realm of GST. GST is never applicable on alcoholic liquor for human consumption. But 5 petroleum products are temporarily out of the ambit of GST. Temporarily means उसके ऊपर in future GST लेवी होगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, बट कौन सी डेट के बाद होगा वो आपको पता चलेगा, अब तक के तो नहीं हुआ। आई जस्ट वांटेड टू नो द रीजन बिहाइंड दिस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये मुझे बताओ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर क्यों रखा है टेम्पररीली, बोलो क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से। सर प्रेजेंट में अभी प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता है ना। तो नहीं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि टैक्सेस के बाहर है, इट इज वैट इज एप्लीकेबल, नो देयर एक्साइज इज एप्लीकेबल, वैट इज एप्लीकेबल, so those things are applicable, but GST is temporarily out of these petroleum products are out of GST temporarily. So what is the reason? Taxes तो उसके ऊपर बहुत लगते हैं and you know कितने taxes लगते हैं उसके ऊपर, so the actual price is actually half of or lesser than half of the price which you are getting at the petrol pump, correct? Yes, बोलो। वो मतलब हायर डिपेंडेंस करता है ना स्टेट्स पे। अच्छा, नहीं, पेट्रोल का अब जो रेवेन्यू जो है वो स्टेट को भी जाता है, सेंटर को भी जाता है बेटा, उसके ऊपर स्टेट टैक्स भी है और सेंट्रल टैक्स भी है। ओके, मुझे एक बात बताओ कि आपको ये तो पता है ना कि हर स्टेट में जो है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अलग अलग होते हैं, पता है क्या आपको? डू यू नो दैट? हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूल वगैरह जो है, डीजल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसके प्राइसेस हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं एंड दी कोर रीजन बिहाइंड दिस इज स्टेट टैक्स। सो अगर आपको लगता है कि सेंटर उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी ज्यादा करती है तो आप गलत हो, ठीक है। स्टेट भी उसके ऊपर क्या करती है, टैक्सेबिलिटी करती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। और स्टेट टैक्स की वजह से वो हर स्टेट में जो होता है वो अलग अलग प्राइसेस पे आपको दिखेगा, ठीक है। और कई जगह पर डिफरेंस जो है वो आपको 5-6 ऐसे भी डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, ₹5 का, ₹6 का डिफरेंस आपको दिखेगा पेट्रोल प्राइसेस में, डीजल प्राइसेस में, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द रीजन ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको क्या लगता है कि क्यों अलग हो सकता है जीएसटी से, टेम्पररी क्यों अलग रखा हुआ है?
और बाद में हम लोग इनको क्या करेंगे, इनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? तो अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। एनीथिंग यू फील के सर ये रीजन हो सकता है, तो मुझे एक नया रीजन समझ में आएगा, बिकॉज पढ़ाने से पहले मैं पूछ लेता हूँ, अपनी चीजें थोपने की आदत नहीं है मुझे। ओके सर हाँ बोलो। अल्कोहल के लिए आपने बताया था कि हर स्टेट में जो है अलग 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 रूल्स हैं सर। हाँ हाँ अलग अलग रूल्स है। वैसे पेट्रोलियम का भी अभी आपने कहा था ना कि अलग, तो मे लेकिन भी हाँ मे भी बोलो। तो मे भी सिमिलर, ओके अगर पेट्रोलियम में अगर जीएसटी लगा देंगे तो वो उसका ये बढ़ जाएगा, उसका अच्छा रेट और भी बढ़ जाएगा। ओके करंटली वो ज्यादा है, और अगर जीएसटी भी लगेगा तो उसका जो है रेट और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है। सो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि अगर उसके ऊपर जीएसटी लेवी होगा बेटा, तो उसके ऊपर एक्साइज और वैट लेवी नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? जिस चीज के ऊपर जीएसटी लेवी होता है उसके इसके ऊपर वैट एक्साइज ये सब टैक्सेस लेवी नहीं होते, एक्सेप्शनल केसेस है। मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस भी आएगा, अभी बताता हूँ चीज, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो रीजन ये है कि जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा, मतलब उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी क्या है आपको पता है? दो हाईएस्ट रेट आपको बताने हैं मुझे, एक तो जो करंटली प्रिवेलिंग है वो, और दूसरा हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी क्या है, मतलब एज पर जीएसटी लॉ। 18%, हम्म 8%, कितना? 18%। 18 नहीं 28% भी है बेटा। तो करंटली जो हाईएस्ट रेट जो है वो 23। 28% है। 28 बेटा, 28 मुझे 28 लगा जो है नहीं बोले करंट, सर आप। नहीं 28 जो है वो हाईएस्ट है अब तक का, जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेवी होता है। यस, गौरव इज राइट। हाँ, सो जीएसटी के ऊपर जो लेवी होता है सबसे हाईएस्ट जो रेट ऑफ टैक्स है अब तक का वो 28% है। ये आपको पता होना चाहिए, नेट पे भी सर्च करेंगे आपको ये आंसर आराम से मिल जाएगा। बट जब हम लोग पूछते हैं एग्जाम में तो हम लोग ये नहीं पूछते, ठीक है, कि करंटली क्या रेट चल रहा है। हाईएस्ट रेट इन जीएसटी क्या एप्लीकेबल हो सकता है, अब तक के वो किसी के ऊपर एप्लीकेबल ना हुआ हो भले, लेकिन हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी क्या हो सकता है, तो आपका बोलना बोलना चाहिए आपको कि आईजीएसटी का भी जो रेट है वो ज्यादा से ज्यादा आपका 40% हो सकता है, और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो कि हाफ हाफ होते हैं तो 20% हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा सीजीएसटी 20% होगा, ज्यादा से ज्यादा एसजीएसटी 20% होगा, और दोनों मिलाकर भी अगर किसके ऊपर चार्ज करते हो, आईजीएसटी चार्ज करते हो, सो दैट विल बी अराउंड 40%। ठीक है, अराउंड 40% मीन्स मैक्सिमम 40%, उससे ज्यादा आपको नहीं चार्ज कर सकते। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं एक आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ, ठीक है। एक्सेल ओपन नहीं है तो एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस क्या हो सकती है? जो आपको क्रूड ऑयल वगैरह मिलता है, इसकी प्राइस आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट में कितनी हो सकती है? बताओ मुझे, ज्यादा से ज्यादा आप बताओ कितनी होगी इसकी प्राइस। 40 एज्यूम कर ले, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं होगी मुझे लगता है, अब मुझे भी करेंटली नहीं पता। 40 to 50, ओके ठीक है, चलो 50 ले लेते हैं, किसने बोला है अगर तो आई थिंक इट इज अराउंड 40 ओनली, या उसके उससे भी कम होगा। तो ये मैं आपको प्राइस ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ इसके ऊपर मैक्सिमम जीएसटी कितना चार्ज हो? 38 है, ठीक है ना बेटा। 50 50 ले लो, चलो मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि 50 होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगी, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर जीएसटी कितना ले लिया, ये प्राइस है जो कि आपको मिल रहा है, मतलब इंपोर्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। और इसके ऊपर आप जीएसटी कितना लगा सकते हैं? अगर आईजीएसटी भी लगा तो मैक्सिमम कितना लगेगा इसके ऊपर, बोलो। आपने अरे कहा था बताओ। सर 40%। 40, हाँ 40, ज्यादा से ज्यादा 40%, वो भी हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। व्हाट विल बी द टोटल प्राइस? अब जीएसटी लगेगा तो और कोई टैक्स लग सकता है क्या? कितना प्राइस हो गया आपके पेट्रोल का? 70। ठीक है, नाउ टेल मी क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? आप एक बात बताओ, जीएसटी में तो आपने लिख दिया है कि हाईएस्ट रेट इज 40%, तो आप 40% से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं क्या?
40 से ज्यादा नहीं चार्ज कर नहीं, सकते हैं, सब कुछ एज उसमें पर, इंक्लूड होगा। हाँ एज पर रूल ओनली उन्होंने आपके इसमें जो अ, जो लास्ट अमेंडमेंट्स में जो है वो आपको देखेंगे एज पर रूल ही आप 40% रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज आपने अगर अब तक क्या कोई दूसरा अमेंडमेंट नहीं किया तो मतलब जब तक कि उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा तब तक, लेकिन अब तक के तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर और कुछ नहीं है ना। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि टोटल प्राइस इज गेटिंग डाउन टू 70 एंड देयर इज नो एनी हार्म, आपको कोई इसमें बुराई नहीं है कि उसका प्राइस कम हो गया, दिस इज ओनली गुड। और वो भी मैंने मैक्सिमम प्राइस आपको लेके मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में कितना होगा, ठीक है। तो भी आपका प्राइस जो है वो 70 आता है, और अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल प्राइस लेके तो मुझे लगता है 60 या 70 के बीच में उसका प्राइस हो सकता है, ठीक है। नाउ इसका ड्रॉबैक क्या होगा? सी प्राइस रिड्यूस होना कोई ड्रॉबैक नहीं, ठीक है। उसके अलावा क्या ड्रॉबैक ड्रॉबैक हो सकता है इस चीज का? क्या प्रॉब्लम रेवेन्यू होगी? जनरेट नहीं होगा ना सर, वेरी गुड, ड्रॉबैक। एकदम टू द पॉइंट, जो कि गवर्नमेंट ने भी सोचा ये चीज, उनको और कुछ नहीं दिखता है, उनको दिखता है कि रेवेन्यू 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 का प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। जीएसटी ये सब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, आपको क्या लगता है इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा? और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में जो है इस चीज का यूज होता है, ये आपको सबको पता है। अगर नहीं भी है तो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट आपको हर जगह पे तो चाहिए ही, ठीक है। और एक नॉर्मल पर्सन भी जो है वो सिर्फ ट्रैवलिंग करने के लिए, आप और मैं भी ट्रैवलिंग करने के लिए ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। मे बी डीजल में भी पेट्रोल डायरेक्टली यूज करें, इनडायरेक्टली यूज करें, मीन्स आप बस में भी हैं तो बस में भी आप क्या कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह का यूज वहां पे भी होता है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहां पे भी यूज हो रहे हैं। सो क्या होता है कि ये बेसिक चीज है जो हर चीज को लिंक करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है। और अगर आपने उसके प्राइस कम कर दिए, उसका उसके ऊपर रेवेन्यू कम कर दिया है, तो बहुत बड़ा लॉस होगा स्टेट को भी और सेंटर को भी, और सबसे ज्यादा स्टेट को, ठीक है। और आप माने या ना माने, स्टेट सबसे ज्यादा टैक्सेबिलिटी करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो है उनके लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी में लेकर आ जाओगे तो उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। दिस इज द ओनली रीजन स्टेट गवर्नमेंट भी एग्री नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज के मतलब ये आगे पीछे हो रहे हैं कि कैसे क्या करना है। इसलिए अब तक के कोई रूल इसके ऊपर अब तक के आया नहीं है। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी कब आया था? 2017 में, तब डिस्कस हुआ था कि अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी में लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब तक के उसके ऊपर कोई भी डिसीजन अब तक के ऑफिशियली तो नहीं आया है कि क्या होगा इससे रिलेटेड चीजें, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है वो जीएसटी एम्बिट से टेम्परेरीली बाहर रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये जीएसटी नहीं इसके ऊपर लेगी होता, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। एल्कोहलिक लिकर के ऊपर कभी जीएसटी लेवी नहीं होगा, आंख बंद करके आप ये चीज बोल सकते हैं। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जब तक कि आप नाम लेते हैं टेम्परेरी, तो उसके ऊपर अभी जीएसटी नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। इन फ्यूचर उसके ऊपर जीएसटी होगा, और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, रिकमेंड करेगी कि कब से ये स्टार्ट होना चाहिए। ओके, रियल एस्टेट के ऊपर अब तक के स्टैम्प ड्यूटी लगता है, आपको पता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। हम लोग सर्विस की कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह की भी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसके ऊपर भी जीएसटी लेवी होता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके ऊपर अभी भी क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। सो ये भी स्टेटमेंट के साथ को आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि पूरा रियल एस्टेट की जब बात करेंगे तो आप ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस पार्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये सब चीज के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी कभी पूछता है कि टोबैको के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। तो टोबैको सबसे ज्यादा मजबूर आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। टोबैको जो है उसके ऊपर जीएसटी के साथ साथ अभी भी सेंट्रल एक्साइज उसके ऊपर लेवी होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल टैक्सेशन, और रीजन आपको पता होना चाहिए कि टोबैको जो है उसको आपको क्या करना है, उसका कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर डबल टैक्सेबिलिटी होती है जीएसटी के साथ साथ। मैंने बोला था एक्सेप्शंस है हमारे पास, ठीक है। टोबैको इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है जहां पर जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज लेवी होता है, ठीक है। एक्साइज को जीएसटी में सब्स्यूम किया है एक्सेप्ट सम केसेस, सारे सेंट्रल एक्साइज जो है वो जीएसटी में
सब्स्यूम्ड हो गए हैं, वैट जो है वो जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गया है। वो अभी आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अब तक के वैट है, ठीक है, बट देयर भी हम लोग को पता चलेगा इन फ्यूचर की क्या होने वाला है। ओके, डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी का मतलब ये होता है, आपको अभी तक के समझ में आ गया होगा, जो भी इधर एनोटेशन कहाँ से आ गया, एनोटेशन क्लियर ऑल हो गया, इसको थोड़ा मूव करते हैं। डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी का मतलब ये होता है कि स्टेट एज वेल एज सेंटर विल कलेक्ट जीएसटी। तो आपको पता है कि सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, करेक्ट। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आप अच्छे से पढ़ना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीएसटी का पेपर बने और इसमें से कुछ ना आए, ठीक है। इट इज स्कोप ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, कितना एप्लीकेबल होता है, कहाँ तक के एप्लीकेबल होता है, या इन फ्यूचर एप्लीकेबल होगा, सब चीजें इसी में है, ठीक है। ओके, अभी अपने पास टाइम कितना है जरा देखो। अभी तो टाइम है, तो थोड़ा सा हम लोग ये भी चीज ले सकते हैं, और तब तक के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वापस से कोई अटेंडेंस लेके भेज देगा मुझे। तो हम लोग तब तक जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कर रहा है, दोनों में से एक करो, या तो एलेक्स या तो महेश, दोनों डबल वर्क मत करो। कौन कर रहा है, एलेक्स आर यू देयर? यस सर, करता हूँ मैं। हाँ, महेश नहीं है ना, महेश भी होगा लेकिन दो दो बार नहीं करना है क्योंकि फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। ओके, जीएसटी काउंसिल का मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers president to constitute a joint forum of the center and states called as goods and services tax council। तो ये फोरम है, ठीक है। प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 279 टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें कुछ मेंबर्स जो है सेंटर की तरफ से होंगे, कुछ मेंबर्स जो होंगे स्टेट की तरफ से होंगे, जो कि दोनों फॉर्म करेंगे जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जिसको बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल फॉर्म होगा, ठीक है। जिसका चेयरपर्सन कौन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अदर मेंबर्स में उसके पास होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी उसमें होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। कोरम मीटिंग का आपको कोरम का मालूम, कोरम का मीनिंग पता है कि मीटिंग फिर नहीं होगी अगर 50% मेंबर इसके नहीं होंगे तो। वोटिंग राइट जो है वो सेंटर के पास 1/3 है और स्टेट के पास कितना है, 2/3 वोटिंग राइट्स। ओके, नाउ फंक्शंस क्या है जीएसटी काउंसिल के, जीएसटी काउंसिल को करना क्या क्या है। जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन ऑन, ये सब चीज के लिए रिकमेंडेशंस देने वाले हैं। कौन सा टैक्स, सेसेस, सरचार्जेस दैट नीड्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। सबस्यूम्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट सबस्यूम्ड मींस दे विल बी टेकन इनटू जीएसटी, so they will lose their existence and they will be merged with GST, they will come under GST। so मैंने बोला कि अभी तक के कुछ चीजों के ऊपर सेंट्रल एक्साइज है, तो कुछ चीजों के ऊपर सेंट्रल एक्साइज जो है वो अब तक के सबस्यूम नहीं हुआ है। so when you talk about subsumed it means it will be taken under GST। okay, goods or services that should be subject to or exempt from GST। so what are the limit of goods or services that will be subject to exemption or that will be taxable? Okay, that will be the recommendation of GST council। model of GST laws, principles of levy, apportionment of GST, कैसे GST के मॉडल बनेगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या क्या अप्लाई होंगे लेवी के टाइम पे, मतलब लेवी मींस टैक्सेबिलिटी के वक्त। अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी कैसे होगा, कितना सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा, कैसे अपॉर्शनमेंट होगा, और इन केस ऑफ क्या बोलते हैं, स्टेट को जब जरूरत होगी तो कैसे सेंटर उसको उसको कॉम्पेंसेशन कैसे करना है, दैट इज जीएसटी कॉम्पेंसेशन। सो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो व्हिच गुड्स और सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कोई लिमिट अगर आपको ऐसा रखना है, रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है, हर स्टेट के लिए अलग अलग होती है, हर किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है।
So you have to follow certain turnover limit also. You have to follow means if your turnover is above that, you will have to be registered under GST. So that you have to follow. Threshold limit is given by GST Council. What will be the tax rate of GST? Special provision for special category areas भी states भी आप पढ़ेंगे. तो आसाम है, सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है. ये सारे स्टेट जो है वो किस में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं वो सब इसमें आते हैं. तो इनके लिए ये स्पेशल कैटेगरी में है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. और जीएसटी में कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को नहीं लिया है, वो अलग बात है. बट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी होंगे, रजिस्ट्रेशन की लिमिट उनकी अलग होगी, ठीक है, और भी कुछ प्रोविजन उनके लिए अलग हो सकते हैं. सो ये सब कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगा, ठीक है. जीएसटी काउंसिल और ये मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से आपको लिस्ट सब मिलेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के रूल्स अलग अलग होते हैं. उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, दोनों से रिलेटेड आता है. स्पेशल कैटेगरी एंड नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है दोनों के लिए क्वेश्चन आते हैं. जीएसटी काउंसिल shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum products. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कब से लेवी होना है, that will be recommended by GST Council. ओके, ठीक है. सो हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ जीएसटी हम लोगों ने पढ़ ली. ओके, नाउ 5 minutes are remaining. आई थिंक अटेंडेंस पार्ट इज ओवर. मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज देयर एनी क्वेश्चन? है सर, पर वो सिलेबस पे नहीं है. ओके, तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ठीक है.